Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. एंड हम लोग बहुत ही जल्दी अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटीज़ को हम कंप्लीट करने वाले हैं. ऑलराइट, हमारे थोड़े बहुत पार्ट्स बच रहे हैं एंड दैट इज़ अबाउट द हीटिंग इफेक्ट. ऑलराइट, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम आज पढ़ने वाले हैं. इलेक्ट्रिक पावर जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं. ऑलराइट, और थोड़ा पार्ट बचा है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. राइट, तो उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड आई होप आप सभी रिवीजन कर रहे हैं बिकॉज रिवीजन करना ज़रूरी है. ऑलराइट, तभी तो आप स्कूल एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाओगे और तभी आप ओलंपियाड लेवल एजुकेशन को मतलब ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशंस को भी क्रैक कर पाओगे. राइट, सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू ऑल कि आप सभी रिवीजन करें. एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे से स्टार्ट करें. और राइट, बिकॉज ये आपका 10th क्लास है, सो यू शुड बी वेरी मच सीरियस अबाउट स्टडीज़. राइट, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स अ डे से स्टार्ट करना है, लेकिन आगे चलते आप उसको इंक्रीज़ करने वाले हैं. ठीक है, धीरे धीरे आप इंक्रीज़ करेंगे. All right, and if you want any DPP and study material, you can definitely access them from the Telegram channel. All you need to do is to write the TTB010 on the Telegram app. Write that this code TTB010, join the channel, and that's all you need to do is, all right, then you can access the DPP and study material over there. Alright, this is the awesome team you can see which is very much doing hard work for you all so that you can achieve your targets, you can achieve your goals, you can you can definitely achieve all good marks you want in class 10. Alright, and this is the team which is definitely helping you all. And the next thing I want to tell you is that even if you are now at this stage, even if you feel like you are feeling directionless or you feel like you are not having a proper guidance, you can definitely get that from us. If you are willing to do that, what you need to do is you need to go on the website. Alright, and the website is www.talkingtextbooks.in. Alright, over there what you will be getting two type of packages. The number one is the full package, alright, in which you will be getting all the things like a comprehensive study material. You will be getting the bi-weekly quizzes where you will be getting tested twice a week. Alright, and then you will be getting the homework submission feature where you will be doing homework and submitting to us, right? And the next thing you will be getting the weekly or recorded and live classes what you will be getting. All right, and the next thing is the very important thing, periodic test papers. Periodic test papers are important because they will give you the final taste of the examination, like what you will be getting in the final examination, right? What type of questions you will be getting, what should be the number of questions, or how can you achieve all the things in the you can say a fixed time, right? So you will be getting a proper time management thing about the total stress management, how you can do that so that you can feel like कि जब आप final examination दे रहे हो तो आपको बिल्कुल भी अलग feel नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं तो regular testing ही कर रहा हूँ. Right, so that is the thing and that is the motive behind all of this we have created for you, right? The second thing is, the second package is the we can say the test series, all right, and this is for the students who have already studied a lot but they want to test themselves, so they can go for the test series, right? What you will be getting in the test series is recorded and live classes, periodic test papers and bi-weekly quizzes. You will be getting such types of things in the test series. If you want 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in, you can definitely write this code CYLIVE. If you write this code CYLIVE, if you write this code, then you will be getting 30% discount on either of the package you buy. Alright, if you buy the full package you will be getting 30% discount. If you buy the test series package you will be getting 30% discount, right? So that is important for you all. Even if you have any query regarding anything like what are the packages, how you can be benefit from it, is it very much beneficial for you only or not, so you can definitely call us on this number 919549041111. Alright, if you call us on this number, then all your queries regarding anything getting resolved. All right, they will be resolved. Now let's talk about the chapter what we are going to completing. All right, ये हमारा goal है that what we are studying, heating effect of electric current, that is what we are studying in this class. Electric energy, that is what we are studying in this class. Electric power, this is also a topic which we are going to study in this class. Alright, so take out your copies and books, do not waste time and just promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising them on the daily basis. ठीक है, और आपको start करना है 15 minutes a day से and then उसको increase करते चलना है.
ऑलराइट, चलो अब हम फटाफट से जो है स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये बात सबको अभी तक पता चल चुकी है, मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा चैप्टर पढ़ लिया, राइट. तो ये बात तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि करंट फ्लो होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, राइट, ये बात सबको पता चल गई है. बट व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि इस करंट के फ्लो होने से कुछ ना कुछ हीट अप हो जाना, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट, राइट. कैसे हीट अप हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों हीट अप हो रहा है, ये इफेक्ट क्यों देखने के लिए हमको मिल रहा है, लेट अस टॉक अबाउट दैट. देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो ब्लू कलर के सर्कल्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट. ये है एक कंडक्टर का मैग्नीफाइड वर्जन, ठीक है. आपको छोटा सा जो कंडक्टर होता है कॉपर का, यू कैन से कॉपर वायर, तो ये एक जो है ये बड़ा वर्जन है, मैग्नीफाइड वर्जन है, ठीक है. नाउ यू कैन सी कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, द ब्लू वन आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग, ऑलराइट. एंड यू कैन से द ग्रे वन और ब्लैक वन जो है ना, ये सारे के सारे जो हैं ये फिक्स्ड एटम्स हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलराइट. स्टेबल वन जो कि कंडक्टर में होते हैं, ठीक है. नाउ देखेंगे यहाँ पर क्या होता है जब कभी भी हमने जो है सर्किट को ऑन किया, ठीक है, हम लोगों ने स्विच ऑन किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव वन, ठीक है. तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ऑलराइट, एंड दिस इज द पॉजिटिव वन, ठीक है. हम लोग ऐसा कह सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दैट इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो वो अब जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, दैट मीन्स फ्रॉम प्लस टू दी माइनस, ठीक है. तो वो इस तरीके से फ्लो करेगा. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दैट कि क्या होता है व्हेनेवर, जब भी ऐसा कुछ होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये जो ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, डेफिनेट सी बात है वो स्टेबल वालों से टकराएंगे, राइट. तो देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था जो कि धक्का मार के इन इलेक्ट्रॉन्स को भगाना चाहता था कि तुम मूव करो, राइट, ये मूव करेंगे, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, राइट. तो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इनको धक्का मारा, इनको किसी एक इनको एनर्जी दी और इनको बोला कि तुम जाओ, ठीक है. तो ये जाने लगे, राइट. जाते जाते क्या हुआ कि ये सब इन स्टेबल वालों से टकराए, राइट. और जब कभी भी ऐसे टकराते हैं तो अपनी एनर्जी जो है इन स्टेबल वालों को दे देते हैं, ठीक है. तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको एनर्जी प्रोवाइड की गई, किसने प्रोवाइड की, बैटरी ने प्रोवाइड की, सोर्स ने प्रोवाइड की, जहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, राइट. ये सबके सब एनर्जी से जाने लगे, और लेकिन बीच में क्या हुआ, ये जो स्टेबल वाले बैठे हुए हैं इन सब से टकराए. क्योंकि ये टकराए तो ये जिस एनर्जी से फ्लो हो रहे थे, थोड़ी बहुत एनर्जी इन्होंने इनको दे दी, ठीक है. अब क्या हुआ, ये जो बैठे हुए थे इतने सारे स्टेबल वाले, इनको जब एनर्जी मिलने लगी तो क्या हुआ, इनकी खुद की एनर्जी बढ़ने लगी, दैट मीन्स इनके अंदर जो एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगी, एंड एज अ रिजल्ट इनका टेम्परेचर राइज होने लगा. बिकॉज वेन एवर वी गेट एनर्जी, किसी भी फॉर्म में अगर एनर्जी मिलती है तो सबसे पहला काम यही होता है कि बॉडी हीटअप हो जाती है, बिकॉज टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी बढ़ जाती है, राइट. तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगा, एंड जब सभी का ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा कंडक्टर हीटअप होने लगा, राइट. तो दैट इज द थिंग, आप जितनी देर के लिए भी जो है करंट को फ्लो करवाओगे, धीरे 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 जो हीटिंग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और कंडक्टर बहुत गर्म होता जाएगा, राइट. एक और रीज़न इसके मतलब इसके पीछे एक और रीज़न जो है वो ये भी है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए जो सोर्स होता है, बैटरी हुआ या कुछ भी जो सोर्स होता है, उसे कंटिन्यूसली एनर्जी देने पड़ती है, राइट. उसे कंटिन्यूसली एनर्जी देना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो सके. अब कंटिन्यूसली के चक्कर में क्या होगा कि ये बिल्कुल एनर्जी देते जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होते जाएंगे विद फुल एनर्जी, टकराएंगे तो फिर दूसरों को देते जाएंगे जो स्टेबल्स में बैठे हुए हैं, राइट. तो उन सबको देते जाएंगे एनर्जी, और क्या होगा, जो भी बैठे हुए हैं उन सबका हीट एनर्जी इंक्रीज होते चल जाएगा, एंड दैट मीन्स पूरा कंडक्टर का जो हीट है, एनर्जी है, वो बढ़ जाएगा, एंड दैट इज वाई इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है. यही रीज़न होता है कि जब कभी भी आपने कभी एक चीज़ देखा होगा कि
कोई बॉडी, दो बॉडीज़ अगर किसी भी v वेलोसिटी से आती हैं, मूव करती हैं, जब वो कोलाइड करती हैं तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। यही काम यहाँ पे भी हो रहा है। जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है डेफिनेटली ये एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, राइट। जो वेलोसिटी कौन प्रोवाइड करता है? सोर्स प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी जो आपको एनर्जी इनको मिला है, इन ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स को मिला है, वो एनर्जी जो इनको सोर्स से मिला है वो उस एनर्जी की वजह से v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और दैट इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सोर्स हमेशा क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के भेजता है, राइट। जब वो धक्का मार के भेज रहा होता है, एनर्जी देता है, तो कुछ एनर्जी जो है उसमें उनका वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी होता है ना, दैट्स वाई। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? वो वेलोसिटी से मूव करेंगे, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएंगे बिकॉज दे हैव वेलोसिटी, दे हैव एनर्जी, एंड टकराने पर अपने कुछ एनर्जी ये दे देंगे जो बैठे हुए स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और उनको जब एनर्जी मिल जाएगी सो दे विल गेट, उनके पास इंटरनल एनर्जी राइज होने लगेगा, ठीक है। उनका जो हीट है वो जो है टेम्परेचर यू कैन से वो इंक्रीज होने लगेगा, एंड ओवरऑल पूरे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट। अब आप बोलेंगे कि ये इफेक्ट कैसे माना जा सकता है? बिकॉज अब देखो रीजन क्या है इस इफेक्ट का होने में, इसका हीटअप होने का रीजन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये हीटअप भी नहीं होता, राइट। तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पर एक ही रीजन है हीटअप होने का, फ्लोइंग ऑफ करंट, और वी कैन से द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसका मतलब अगर करंट नहीं होता, अगर फ्लो नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता कि भाई हीटिंग भी नहीं हो रही है, बट क्योंकि हीटिंग हो रही है एंड देयर इज अ करंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज द इफेक्ट ऑफ द करंट। एक करंट है इसीलिए हीटिंग है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये इलेक्ट्रिक करंट का ही एक इफेक्ट है। नाउ यू कैन सी कि इसका जो डेफिनेशन है, हाउ वी कैन राइट दैट, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वायर व्हेन करंट is passed through it is called heating effect of current, or we can say Joule heating. Joule heating क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट जूल ने बताया था, that's why we call it Joule heating, ठीक है। तो मेनली इसका काम क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो दूसरे स्टेबल इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, वो उनको अपनी एनर्जी दे देते हैं, एंड दैट्स व्हाई उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड एज द हीट एनर्जी, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन से कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा हीटिंग इफेक्ट होता ही है। अब आपने भी तो ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब कभी भी हम फ़ोन को या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो वो भी गर्म फील होने लगता है, हम उसको टच करके भी देख सकते हैं दैट इट इज़ हीटिंग, राइट। तो ये रीज़न है इस चीज़ का, दैट हीटिंग इफेक्ट रियली में होता है और हमेशा होता है, ऑलराइट। सो वी कैन से दैट इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ हैपनिंग रियली, ठीक है। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो कि जूल्स हीटिंग को दिखाएगा, ऑलराइट। उसके लिए देखो, उसके लिए क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में जो जूल नाम के वैज्ञानिक थे, और यू कैन से द साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड ही वांट्स टू फाइंड आउट कि ये जो हीटिंग होती है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है, ठीक है। ही वांट्स टू फाइंड आउट एंड ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स, तो उनको कुछ कंक्लूजन्स मिले, ऑलराइट। वो कंक्लूजन्स क्या थे? नंबर 1, उन्होंने ये पता लगाया दैट कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर is directly proportional to the square of the current. ऑलराइट, तो उन्होंने क्या पता किया? पहली बार में उन्होंने ये पता किया कि जितना भी हीटिंग हो रहा है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है जितना करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर पे। सो ही कन्वेड, और यू कैन से ही गॉट आउट कि ये जो हीट है ये आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट ही फाइंड आउट, ठीक है। नंबर 1 हम इसे लिख लेते हैं,
Second thing he tried out, देखो heat produced inside the conductor is directly proportional to the square of the current. Alright, we talked about current. फिर उन्होंने क्या देखा कि भाई जितना रेजिस्टेंस पे उसका क्या इफेक्ट होता है, तो ही फाइंड आउट कि भाई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस हो रही है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट ही गॉट सम यू कैन से ऑब्जर्वेशन और यू कैन से कि भाई ये उनको पता चला. सो ही डिसाइड ही फाइंड आउट दैट heat produced is directly proportional to the resistance. टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो उन्होंने ये पता करा कि भाई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग भी होगा. मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, यू कैन से कितना हीट एनर्जी उसके अंदर है, वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली से द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. तो ये सेकेंड चीज़ उन्होंने जो है पता करी, उनको पता चली. नाउ ही रॉट इट हाउ एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग, है ना. अब इन्होंने एक और चीज़ पता करी थी, एक और टाइम जो है इन्होंने देखा है, और वो देखा टाइम के ऊपर डिपेंडेंस कि भाई अगर हम ज़्यादा देर तक कर लेट्स से 2 to 3 आवर्स हम किसी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, या फिर 2 to 3 आवर्स या फिर और भी ज़्यादा टाइम तक जो है कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है. सो व्हाट ही फाइंड आउट, उन्होंने भी इसमें के अंदर भी क्या पता किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को ही जो है उन्होंने फाइंड आउट किया. सो ही सेड दैट ही प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, heat produced in conductor is directly proportional to the time. ठीक है, टू द टाइम, और टाइम भी क्या, जितना देर तक, मतलब जितने टाइम में करंट को फ्लो करवाया गया, ठीक है, उतने टाइम तक. सो यू कैन से दैट एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. सो ही फाउंड दीज 3 थिंग्स. उन्हें पता चला, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस का क्या उसमें रोल होता है, या फिर और भी किन्हीं चीज़ों का, क्वांटिटीज़ का क्या रोल होता है, बट ही फाइंड आउट ओनली 3. ठीक है, उनको ये लगा कि हाँ 3 में जो है डिपेंडेंसी है, बाकी में डिपेंडेंसी नहीं है. सो ही डिसाइड, ही फाइंड आउट, और यू कैन से ही गॉट इट कि आई स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर, जितना करंट फ्लो करवाया जाएगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना देर तक करंट को फ्लो करवाया जाएगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नाउ लेट्स कंबाइन ऑल द थिंग्स एंड लेट्स फाइंड आउट कि भाई हमको क्या मिलता है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही हम करेंगे कंबाइन, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, आई स्क्वायर आर टी, हमको ये मिलेगा, राइट. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, राइट. वो जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय जे. ऑलराइट, ये जो जे है दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, वेयर जे इज proportionality constant, all right, and what other, y, और जो दूसरा नाम जो है वो क्या है, उसे हम कहते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ठीक है, ये जो है बड़ा सा नाम है उसका जे का, उसे हम बोलते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, एंड दिस लॉ इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, इसको हम बोल देंगे दैट दिस लॉ इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. वैसे तो बहुत बड़ा नाम है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे करके बहुत बड़ा नाम है, पर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा ही लिख देते हैं. ठीक है, अब एक और चीज़ जो है हमको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो हमको एनर्जी मिल रही है,
ठीक है, ये जो हमको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी जूल्स में आती है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये एनर्जी आपको मिलेगी किस में, कैलोरीज में। आप सभी को पता है ना कि कैलोरी भी एक हीट का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको किस में मिलेगा, कैलोरीज में मिलेगा। अब हाउ टू कन्वर्ट दैट इन जूल्स, इसके लिए जे का वैल्यू काम में आएगा। आपको पता है जे का वैल्यू क्या होता है, जे का वैल्यू होता है 4.18 जूल कैलोरी इनवर्स। ठीक है, ये जे है, ये गलती से ऐसा हो गया है। ठीक है, तो मैं वापस से ही लिख देती हूँ, जूल कैलोरी इनवर्स जो है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, ये जो जे है इसका वैल्यू है 4.18 जूल पर कैलोरी। ऑलराइट, एंड दिस लॉ इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड यू शुड नो दैट जे का क्या नाम है, बड़ा सा, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट व्हाट वी विल बी स्टडिंग इज इलेक्ट्रिक, यू कैन से एनर्जी। हम नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। फटाफट से इसको नोट कर लो ताकि हम लोग जो है पढ़ सकें। ऑलराइट, आप इसको फटाफट से लिख लो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, लेट अस स्टार्ट दी नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हमको पता है कि भाई जो एनर्जी बैटरी ने रिलीज़ की है, ठीक है, या फिर वीकेंड से जो एनर्जी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने ली है आगे फ्लो होने के लिए, राइट, वो एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, डेफिनेट सी बात है, राइट। सो दैट इज द थिंग, द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से दूसरी जगह तक भेजने में जितना काम किसने किया है, सोर्स ने किया है, ताकि करंट का मेंटेनेंस, मतलब करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट, तो यही तो है, वर्क डन को ही हम एनर्जी बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि जितना एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भगाने में लग गई, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, और कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहे, करंट फ्लो होता रहे, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है, राइट। देखेंगे इसमें, ये जैसे बैटरी है, ये बैटरी नहीं पूरा सर्किट ही है। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं पूरा सर्किट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है ये कंटिन्यूसली करंट को फ्लो करवा सकती है जब तक इसके अंदर के सारे केमिकल्स फिनिश नहीं हो जाते, राइट। तो ये कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकती है। सो व्हाट इज द रीजन, ये एनर्जी दे रही है, किसको एनर्जी दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है, ताकि क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके मूव कर सके। ठीक है, और एक वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो देखेंगे अभी हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको लेकर आ सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। ठीक है, देखेंगे फटाफट से यहाँ पे कि अब इसने क्या बोला है कि कितना वर्क डन किया गया, राइट, चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन किया गया, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट, तो वी कैन से कि भाई हम लोग ये बात पहले से जानते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन बाय क्यू कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं पहले से, राइट। तो हम इसमें क्या बता सकते हैं कि जो W होता है उसे हमने क्या बता दिया है, VQ बता दिया है। ठीक है, सिंपली कुछ भी नहीं किया, Q को हम इधर V के साथ मल्टीप्लाई में लेकर गए हैं और कुछ भी नहीं किया है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर हम Q को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम Q को I इंटू टी नहीं लिख सकते, बिकॉज वी नो दैट कि आप ये पहले से जानते हैं कि जो करंट होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं Q को लिखना चाहती हूँ तो मैं I इंटू टी लिख सकती हूँ। सो आई कैन राइट वर्क डन हियर एज, क्या लिख सकती हूँ, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, राइट। देखो VIT हम लोग लिख रहे हैं, राइट। V को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। सो वी कैन से बाय ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ से लिखेंगे सो वी कैन राइट V इक्वल्स टू IR, ये तो सभी को पता है ओम्स लॉ, राइट। अब देखेंगे
इसी वर्क डन में v की जगह पे IR पुट कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, IRIT, ठीक है, तो I का स्क्वायर मिल गया, तो हमारे पास जो W है वो बन जाएगा I स्क्वायर RT, एंड दिस वर्क डन इज द एनर्जी, एंड द एनर्जी को हम लिख सकते हैं H से शो कर सकते हैं, ऑलराइट, E से शो कर सकते हैं, तो ये E लिख दिया है, ये H लिख दिया है, एंड दैट इज द I स्क्वायर RT, ऑलराइट। सो दिस इज दी, यू कैन से कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है, या फिर कितना एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने कंज्यूम किया है, ऑलराइट, दैट वुड बी दी I स्क्वायर RT, ऑलराइट, एंड दैट इज दी इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ दी, यू कैन सी द सोर्स, या फिर प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, या फिर जो एनर्जी डिसिपेटेड है। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या प्रूफ हो रही है, ये क्या प्रूफ कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कि डिसिपेटेड, यानी कि यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन से डिसिपेटेड मतलब रिलीज होना, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंज्यूम हो रही है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट। आप देख पा रहे हैं I स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डेफिनेट सी बात है, फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R पे डिपेंड करता है, यस ट्रू है, टाइम T, यस टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स हाउ वी कैन से कि कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है रिलीज हो रही है या फिर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, दिस डिपेंड्स ऑन द करंट का स्क्वायर, this depend on the resistance and this depend on the time, alright, so this is the electric energy what we are talking about। अब आप फटाफट से जो है इसको नोट करो, alright, and कोई भी दिक्कत हो तो you can definitely comment in the comment section, alright, and और क्या, फटाफट नोट करो। चलो अब हम देख लेते हैं कि भाई ये जो एनर्जी हम लोगों ने सीखी है उसका SI यूनिट क्या होता है, उसका जो है CGS यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे कि जो SI यूनिट होती है वो सभी को पता है, दैट इज द जूल, बिकॉज एनर्जी का यूनिट इज जूल, राइट। तो SI यूनिट ऑफ एवरी एनर्जी, SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो भी है वो सबका जूल होता है, राइट। तो ये चीज़ जो है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी इज जूल, सिंपल जूल। इसको हम शो करते हैं किससे, कैपिटल J से जो है हम इसको शो करते हैं, और ये कैपिटल J बनाया है मैंने, राइट। सो दिस इज J एंड दिस इज द जूल, ठीक है, ये SI यूनिट होता है। अब नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको पता है कि ये जो जूल होता है और हम लोग जो एनर्जी की बात कर रहे होते हैं ये बहुत ही कम एनर्जी होती है, लेकिन हम लोग, क्योंकि डेफिनेट सी बात है हमारे घर में एक चीज़ तो इलेक्ट्रिकल नहीं है, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल होती है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक छोटी यूनिट काम में नहीं चाहिए, हमको एक बड़ी यूनिट चाहिए, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी जो है हम रोज़ाना जो है यूज़ कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी नीड अ बिगर एनर्जी, एंड दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल मतलब जो हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इन फैक्ट्रीज, लाइक इन हाउसेज, ठीक है। तो जो एनर्जी हमारे घर में यूज़ हो रही है, जो एनर्जी फैक्ट्रीज में यूज़ हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है। लाइक आपके घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं एक साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ड, राइट। तो यू कैन से कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, इसको हमने किस तरीके से लिखा है, कमर्शियल पर्पसेस वी यूज़ अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर, ठीक है। ये किलोवाट आवर कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगी। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt and used for 1 hour। मान लीजिए, let's assume, या फिर आप एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिकल टॉय है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल टॉय 1 किलोवाट का है, पावर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी तक हमने पावर डिस्कस नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि एक जो वो है कार है, लेट्स से एक स्मॉल कार, आपका टॉय कार है, वो 1 किलोवाट एनर्जी को जो है कंज्यूम करती है, और अगर आप उसे 1 आवर के लिए खेलते रहेंगे, ऑलराइट, तो उसमें जो एनर्जी पूरा का पूरा जो है यूज़ हो जाएगी, दैट वुड बी 1 किलोवाट आवर,
ठीक है, एंड दैट इज द पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस किलोवाट आवर. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज किलोवाट आवर अगेन. ठीक है, आगे जाके हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे. अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ द थर्ड वन, जो है CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? नॉट जस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनी एनर्जी, एनर्जी का ही CGS यूनिट यू कैन से. ठीक है, इज व्हाट? अर्ग, ERG. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यू कैन से द CGS यूनिट. ठीक है, तो ये है CGS यूनिट. द अबव 1 किलोवाट आवर इज द यू कैन से द कमर्शियल मतलब जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल वी कैन से. ऑलराइट, एंड द SI इज व्हाट? जूल. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट द किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन है. लेट अस टॉक अबाउट इट. बहुत ईजी है, आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, देखो अब मुझे एक बात बताओ कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है, दिस इज द यूनिट वी वांट टू कन्वर्ट इट इन जूल्स. नाउ टेल मी, देखो किलो, यू नो दैट किलो स्टैंड्स फॉर 1000, राइट? जैसे किलोमीटर तो 1000 मीटर. ठीक है, किलोग्राम 1000 ग्राम. सो किलो स्टैंड्स फॉर 1000, ये तो सबको पता है, राइट? तो वी कैन से कि ये जो K है, छोटा सा K, मैंने उसको क्या कर दिया है? 1000 वॉट कर दिया है. और राइट, ये W था ना, ये वॉट का जो है सिंबल होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट R. R के अंदर वी नो दैट कि कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, राइट? तो वी कैन राइट एज 3600 सेकेंड्स. ठीक है, अब हमको कुछ भी नहीं करना है. 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सिंपल W सेकेंड. Alright, now it is 1 2 3 4 5, and when we write it like this, so I get 3.6 into 10 की power 6 watt second. Watt second मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. जूल. ठीक है, ये जो वॉट सेकेंड होता है ये जूल होता है. ये आपको तब क्लियर होगा जब हम पावर पढ़ने वाले हैं, और इसके ठीक बाद हम पावर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है, राइट? आपको बस अभी ये देखना है. ठीक है, कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको पावर से. दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी यू कैन से किलोवाट आवर एंड जूल्स. ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वी विल बी लर्निंग दैट अगैन इन दी पावर सेक्शन. मे बी हम लोग जो है इसको डील करेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब है? पावर इज जस्ट यू कैन से द एनर्जी बाय टाइम. कितना एनर्जी आप कितने टाइम में यूज़ कर रहे हैं, कितने एनर्जी आप कितने टाइम में रिलीज कर रहे हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पावर. तो किसी भी एक डिवाइस का, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, तो वो क्या करता है? एनर्जी को यूज़ कर रहा है, राइट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है ग्लो होने में. नाउ टेल मी कि वो कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है और कितने टाइम में यूज़ कर रहा है. ऑलराइट, अगर हम इसको जो है इस रेट को देखें तो दैट वुड बी द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है, कितना पावर मीन्स कितना एनर्जी वो यूज़ कर रहा है कितने टाइम में, राइट? सो यू कैन से द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड. या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है रिलीज की गई है या फिर कंज्यूम की गई है बाय द अप्लायंसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SI यूनिट. देखो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. ठीक है, जो हम वॉट की बात कर रहे थे वो ये वॉट है. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट जो कि हम बताने वाले हैं कि भाई 1 वॉट क्या होता है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर मैं जो पावर का फॉर्मूला है उसे इस तरीके से लिख दूं, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. पावर का मतलब यही है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितने टाइम में यूज हो रही है, दैट इज पावर, राइट? सो आई कैन राइट एनर्जी बाय टाइम एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट जूल बाय सेकेंड, बिकॉज SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. टाइम कितना है? सेकेंड. तो जूल बाय सेकेंड इज पावर. और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी का नाम हमने क्या रख दिया है? जूल बाय सेकेंड का नाम ही हमने वॉट रख दिया है. ठीक है, तो दैट इज दी वॉट. ठीक है, और ये वो वाला वॉट नहीं है, क्या वाला वॉट नहीं है, ये वॉट वाला वॉट है. देखो स्पेलिंग भी डिफरेंट है इसका. तो
ऑलराइट, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आप सिंपल इससे देख सकते हैं कि अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड यूज होती है दैन दैट मीन्स कि वो जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1 वॉट। ठीक है, तो दैट इज थिंग इफ 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्स बाय द अप्लायंस इन 1 सेकेंड दैन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंस इज 1 वॉट। अगर 1 जूल का जो है यू कैन से 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड पर सेकेंड दैट मीन्स 1 वॉट पावर इज देयर। ऑलराइट, दैट हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो, पावर ऑफ एन एजेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हॉर्स पावर। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो इंजन्स होते हैं बड़े, जैसे कार का इंजन्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े इंजन्स होते हैं, तो उनकी जो पावर होती है वो हॉर्स पावर में बताई जाती है, जनरली जो है हॉर्स पावर में बताई जाती है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दी हॉर्स पावर? बिकॉज जो जूल नाम का एक जो स्कॉटिश इंजीनियर था, ठीक है, जूल नाम का था वो, ठीक है, जेम्स जूल, आई डोंट नो, जेम्स नहीं वो नहीं था, जूल की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो देखेंगे कि जब वो था, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कंपेयर करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि वहाँ के एरियाज़ में क्या होता था, हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था, स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था। किस काम के लिए? लाइक प्लोइंग, ठीक है, ज़मीन की प्लोइंग। जैसे हमारे यहाँ पे तो किसको यूज़ करते हैं, बैल को यूज़ करते हैं, राइट, इंडिया में बैल को यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, हॉर्स को यूज़ करते थे। सो ही कंपेयर्ड, उसने क्या किया, जो स्टीम इंजन था उसका जो पावर था कि वो स्टीम इंजन कितना काम कर सकता है, और फिर उसने उस हॉर्स को जो है कंपेयर किया। सो ही कंपेयर्ड द थिंग्स कि कितना जो पावर है वो स्टीम इंजन का है और कितना पावर हॉर्स का है, ये उसने कंपेयर किया। एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड एक एनर्जी का यूनिट जिसको उसने जो है हॉर्स पावर नाम दिया, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी यूज इट टुडे। ठीक है, कई बार जो है हम कर लेते हैं यूज़। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। मतलब अगर किसी के पास 1 हॉर्स पावर की पावर है, ठीक है, 1 हॉर्स पावर की पावर है, तो वो क्या करेगा, 746 जूल्स को 1 सेकेंड में यूज करेगा, दैट इज इट्स पावर, राइट। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कितना एनर्जी कितने टाइम में आप यूज कर रहे हैं, दैट इज द पावर। और किसी भी अप्लायंस का, हमारा खुद का भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इलेक्ट्रिक पावर के डिफरेंट फार्मूलेज। हम 4 डिफरेंट फार्मूलेज पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। तो ये तो आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा, आई होप सो। सो नंबर 1 फार्मूला जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, दैट इज एनर्जी बाय टी। ऑलराइट, दिस इज दी यू कैन से द फार्मूला, सिंपल यही फार्मूला और कुछ भी नहीं है, बिकॉज पावर इज द एनर्जी पर सेकेंड यूज। ठीक है, और यू कैन से एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, दैट इज दी एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर वन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग रख रहे हैं W बाई टी। तो हमने कुछ भी नहीं किया, एनर्जी पे, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी ही तो वर्क डन होती है, तो व्हाट वी डिड, हमने वर्क डन कर दिया है बाय टी। नाउ लेट मी टेल यू अगेन कि ये जो वर्क डन होता है, मैं फिर से आपको वो करना बताना चाहती हूँ, दैट इट इज़ V इंटू जो है Q। ठीक है, मैं आपको वापस से बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज द थिंग जो हमने स्टडी किया था, राइट। तो वर्क डन को अगर हम चार्ज से डिवाइड करते हैं तो वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं वर्क डन को लिखूं तो मुझे क्या करना चाहिए, चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। यही हमने आगे जब हमने एक डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो उसमें भी हमने यही किया था, राइट। तो वी डिड VQ बाय टी। अब मुझको ये बात पता है कि Q को मैं क्या कर सकती हूँ, वी कैन राइट, दिस इज द सिंबल ऑफ सिंस। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ट्रायंगल होना चाहिए ये। ठीक है, मैंने 4 डॉट्स लगा दिए, तो इसको जो है हम हटा देते हैं, एक डॉट को हटा देते हैं। देखेंगे जो चार्ज होता है उसे हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। ठीक है, अब मुझे एक बात बोलो कि तुम फटाफट से जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, VIT। ठीक है, Q की जगह पे IT हमने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब T से T कैंसिल आउट हो गया, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, VI। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये है था हमारा फर्स्ट फार्मूला, ये है हमारा सेकंड फार्मूला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। अब जो है थर्ड वन लाने के लिए हमने सिंपल ट्रिक यूज़ की है। वो ट्रिक क्या है, देखो, P इक्वल्स टू VI, अभी हमने जो है इसको डिराइव किया। P इक्वल्स टू VI को हमने अभी लेकर आए हैं, VI। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, V का वैल्यू ओम्स लॉ से लेके आते हैं। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं बाय ओम्स लॉ दैट V इक्वल्स टू IR। ऑलराइट, वी कैन राइट दैट। तो अब हमने क्या किया है, V की जगह पे IR को पुट कर दिया। फटाफट से हम ऐसा कर देंगे तो IR इंटू I हो जाएगा।
अब ये क्या बन गया है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर बन गया है, और यही हमारा है थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। इसमें भी हम लोग जो है थोड़ा बहुत ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। कैसे? P इक्वल्स टू वी आई अगेन, ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, V का वैल्यू रखने की जगह पे हम I का वैल्यू रख रहे हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ पे क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। I का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। ऑलराइट, और फिर क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली इसको P के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, एंड उसके अंदर हमें अगर पुट करना होगा तो दैट वुड बी V बाय R। ऑलराइट, एंड वी गेट P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो ये जो है हमको फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, तो B इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, हमारे पास चौथा फॉर्मूला आ गया है। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इन चारों फॉर्मूलेज को वन बाय वन जो है उसको दे सकते हैं। हाउ? P इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। ऑलराइट, P इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। सेकेंड थिंग आप देखेंगे, यहीं से हम आए हैं। देखो एनर्जी की जगह अगर मैंने सिंपली W लिख दिया है, वर्क डन लिख दिया है, फिर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो इसी से हम नए फॉर्मूले पे आ गए। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं एक बार V का वैल्यू रखूंगी तो थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं I का वैल्यू रख दूंगी तो फोर्थ फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ वी कैन गेट द फोर फॉर्मूलेज ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो आपको पावर कैलकुलेट करने के चार फॉर्मूले मिल गए हैं। अगर आपके पास एनर्जी और टाइम गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूलेज जो हैं आपको रिमेंबर करने हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से हम नोट करो ताकि आप रिमेंबर कर सको बाद में। ठीक है, तो अब आपने सब नोट कर लिए हैं, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हम इस बात पे आते हैं कि हम किस तरीके से अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या जो जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजा है उन्होंने कोई जो है ऐसा वैसा काम तो नहीं किया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? लेट मी टेल यू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर। हमेशा आपको ध्यान रखना है किलोवाट आवर में यूज़ करना है, बिकॉज यही हमारी कमर्शियल यूनिट होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप घर में आपने ये सुना होगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसके अंदर लिखा होता है नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, वो वाला जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो ही ये होता है किलोवाट आवर। ठीक है, वो किलोवाट आवर होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने कितने किलोवाट आवर यूज़ किए हैं तो दैट मीन्स आप बोलेंगे आपने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम यूनिट होता है इंसानों की आम भाषा में। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी, यू कैन से एनीबडी, कोई अगर जिसको पता भी नहीं होता ना इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो तुम उसको बोलो कि आप कितने यूनिट यूज़ करते हो, वो समझ जाएगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि उनके घर में बिल आता है उसका। ठीक है, तो वो ये जो यूनिट नाम है ये किलोवाट आवर का दूसरा नाम है और बहुत ही कॉमन नेम है, सभी यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी हम बोलते हैं कि तुमने कितना यूनिट यूज़ किया तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द किलोवाट आवर एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं अगर तुम्हें किलो, तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो निकलेगी वो किलोवाट आवर में निकलेगी, यानी कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड बाय अस और कंज्यूम्ड बाय अस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ अप्लायंसेस। नंबर ऑफ अप्लायंसेस मतलब हो सकता है आपके घर में 3 बल्ब, ठीक है, और यू कैन से 4 फैंस यूज होते हैं, तो 3 बल्ब, 3 इज द नंबर ऑफ अप्लायंसेस। ठीक है, पावर ऑफ अप्लायंसेस, वो एक बल्ब का पावर कितना है। ठीक है, उस पर लिखा होता है, वैसे तो आपको आप पता कर सकते हैं कि हर एक बल्ब पे लिखा होता है उसका पावर।
तो न पावर ऑफ अप्लायंसेस पता होना चाहिए, लेकिन वो पावर किस में पता होना चाहिए, वॉट में पता होना चाहिए और टाइम आर में होना चाहिए, यानी यू शुड नो दी वॉट आर, ठीक है। उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। सो वी गेट किलो वॉट आर, यानी आपको मिल जाएगा यूनिट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक, हम ऐसे बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, रियल एप्लीकेशन पता चल जाएगा। और रियल एप्लीकेशन करने के लिए हम सिंपली ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले को नीचे यूज करने वाले हैं और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन सेज अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट, ये पावर रेटिंग है, उसके ऊपर लिखा होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ये लिखा होता है। ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, एक दिन में 10 आवर्स जो है ये रेफ्रिजरेटर चलता है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 340 पर किलोवाट आर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो किलोवाट आर की एनर्जी निकालनी है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, एक दिन में, सबसे पहले हम बात करते हैं एक दिन में कितना एनर्जी यूज होता है, वो बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी यूज्ड इन 1 डे, ठीक है, एनर्जी यूज्ड इन 1 डे। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पावर यानी 350 वॉट, ठीक है, इंटू 10 आवर्स, ठीक है, क्योंकि एक दिन में वो 10 आवर्स चलता है। तो मुझे क्या मिल गया है, मुझे मिल गया है 3500 वॉट आर, ठीक है। तो मुझे वॉट आर में मिला है एक दिन का, ठीक है। अब क्योंकि हम इसको, इस रेफ्रिजरेटर को चलाने वाले हैं कितने दिन, 30 डेज के लिए चलाने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि एनर्जी जो है, एनर्जी यूज्ड इन 30 डेज, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं करना हमको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 3500 वॉट आर इंटू 30 डेज, ठीक है। ये 30 लिखा है मैंने और मैं इसे वापस से लिख देती हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमको क्या करना है, 3 5 से 15 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया, 3 3 से 9 होता है और वो 10 होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आ गया है वॉट आर, ठीक है। इसका मतलब ये जो 105 यहाँ लिखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 105,000 जो लिखा हुआ है, ये वॉट आर की एनर्जी लिखी है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए किलोवाट आर, बिकॉज हमको इसका जो है, हम इसको यूज़ करते हैं और इसी का हमें एक यूनिट का रुपया, यू कैन से कॉस्ट दिया हुआ है, और वी कैन से कि एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है। अगर हमें हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाए तो हम सिंपली सारा कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ टेल मी, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 105 किलो वॉट आर, ठीक है। तो मैंने इसको किलोवाट आर में डिवाइड कर लिया, कैसे करा, बाय 1000। अगर मैं इसको 105,000 को 1000 से डिवाइड करूंगी ना, तो आई विल बी गेटिंग दिस मच, ठीक है। अब मुझे पता है कि 3.40 पर किलोवाट आर है, एक किलोवाट आर को का जो कॉस्ट है वो 3.40 है। तो अगर ऐसा होगा तो टोटल कॉस्ट मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी रुपीज़ 3.40 इंटू 105, ठीक है। ये है जो मुझे मिल जाएगा और हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा, यू कैन से, ये डबल पॉइंट लग गया, ठीक है, वाह। तो देखो यहाँ पे 3.40 ने 105, अब जैसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वी विल बी गेटिंग दी टोटल एनर्जी यूज्ड बाय अस, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कितना एनर्जी हमको चाहिए होगा, या हमको मिल जाएगा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ हमने रेफ्रिजरेटर का किया है, आप ऐसे बल्ब्स का निकाल सकते हो, आप ऐसे फैन का निकाल सकते हो, अपने लैपटॉप का चार्जर और वॉट एवर जो भी आप यूज़ करते हो, आप उन सभी का यूज़ जो है कैलकुलेट कर सकते हो, एड देम ऑन एंड यू कैन गेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑलराइट। तो चलो अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं एंड लेट मी टेल यू द पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, किस तरीके से आप देख पा सकते हो या फिर पता कर सकते हो कि उस डिवाइस का या फिर उस अप्लायंस का क्या पावर रेटिंग है। तो आपको 2 पावर रेटिंग दिखेंगी, एक तो वॉट में दिखेगा, एक वोल्टेज में दिखेगा, ठीक है। तो देखो आप इसको देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है 220-240V, है ना, 50 हर्ट्ज, ठीक है। और उसमें आपको कहीं ना कहीं वॉट भी दिखेगा और वो हमें दिख रहा है 15 वॉट,
ठीक है, तो देखो ये हो सकता है आपको डेफिनेटली दिखेगा 15 वॉट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 15 वॉट, इसका मतलब इसका जो पावर है वो 15 वॉट है, और इसका मतलब कि ये 1 सेकेंड के अंदर 15 जूल्स एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं एलईडी, तो इसके अंदर क्या होगा, ये हमेशा क्या करेगा 15 जूल्स जो है 1 सेकेंड में एनर्जी ले लेगा, दैट्स इट्स पावर। एंड जो वोल्टेज होता है वो क्यों होता है, वो देखो 220 to 240 वोल्ट इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जो डिवाइस है यानी ये जो एलईडी है, ये जब आपके घर में 220 से लेके 240 के बीच में वोल्टेज आएगा, ये तभी जो है वर्क कर सकता है, उसके अलावा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो जब कभी भी पावर लिखा होता है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, देखो जब कभी भी वोल्टेज लिखा होता है तो वहाँ पे आपको पता मतलब चला होता है, या फिर यू कैन से कि वो वोल्टेज है जिस पर ये डिवाइस वर्क करेगा। ठीक है, जिस पर ये डिवाइस जो है एनर्जी को यूज़ करेगा, और वो भी कितनी 15 जूल पर सेकेंड, बिकॉज इसका जो रेटिंग है, ठीक है, इसका जो रेटिंग है कितना है 15 वॉट है। इस वॉट को क्या लिखते हैं हम 15 जूल पर सेकेंड, तो इसका मतलब 15 जूल पर सेकेंड में ये कंज्यूम कर लेता है, यूज़ कर लेता है। ठीक है, एंड इसका जो वोल्टेज है वो कितना बताया हुआ है 220 से 240 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब 220 से लेके 240 वोल्ट अगर आपके घर में पोटेंशियल डिफरेंस आता है तब ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपका नहीं आता, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग वोल्टेजेस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो ये बल्ब जो है यहाँ की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाया है, पर अगर ये बाहर हम इसको लेकर चले जाए एंड वी यूज़ देयर, और वहाँ पर अगर कोई डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हो, लेट्स से वहाँ पे जो है वोल्टेज हो 110 यूज़ होता हो, तो ये बल्ब वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट्स इट व्हाट कि हर एक डिवाइस के ऊपर, अप्लायंस के ऊपर उनका पावर वोल्टेज रेटिंग लिखा होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि पावर वोल्टेज रेटिंग पर ये कब काम करेगा और कितना जो है पावर यूज़ करने वाला है, ये चीज़ हमको पता चल जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द एप्लीकेशंस। ये हीटिंग इफेक्ट का हम लोग पता है फ़ायदा भी उठा लेते हैं। वैसे तो हम लोग ऐसे हैं कि ये हर एक एनर्जी और यू कैन से कि हर एक थ्योरी का हम लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इवन हमने इंसुलेटर्स का तक फ़ायदा उठाया हुआ है, राइट, हम लोगों ने कंडक्टर्स का फ़ायदा उठाया हुआ है। अब हम इस हीटिंग इफेक्ट का किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं हम वो बताते हैं। देखो प्रेस में, ठीक है, टोस्टर में, ठीक है, रॉड में क्या हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे यू कैन से कि ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है जो मटेरियल्स बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाले होते हैं। ठीक है, नहीं, कम रेजिस्टेंस वाले होते हैं तो कंडक्टर कैन फ्लो ईजिली, राइट, जो वायर्स बने होते हैं, है ना, वो जो कॉपर वायर होता है, जो कनेक्शन वायर्स होते हैं, वो सब के सब ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जिनका लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यू कैन से कम रेजिस्टेंस है तो करंट कैन ईजिली फ्लो, तो क्या होता है सारे के सारे कनेक्शंस वायर्स में से करंट ईजिली जा सकता है। ऑलराइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हीटिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग करवाने के लिए क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस के जो मटीरियल्स है उनको यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि देखो हाई रेजिस्टेंस है तो करंट बहुत ही कम मुश्किल से फ्लो हो पाएगा, राइट। अब क्योंकि करंट कम फ्लो हो पाएगा तो क्या होगा, सारा का सारा एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टकराने में और उस पावर को, मतलब वो जो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको उनसे पार पाने में जो है उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करनी पड़ती है, एंड वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। दैट इज़ व्हाट हैपनिंग हियर। यू कैन से जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं जनरली, देखो द कॉइल्स ऑफ दीज डिवाइसेज आर मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली जो मटीरियल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नाइक्रोम या फिर टंगस्टन। ये जो टंगस्टन होता है ये कहाँ यूज़ होता है, बल्ब का छोटा सा फिलामेंट आपने देखा है जो ग्लो करता है, वो ये टंगस्टन होता है, और इसका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, इसी की वजह से ये ग्लो कर पाता है, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर आता है ना, वो सारा का सारा ग्लोइंग में चला जाता है, उसका सारा एनर्जी जो है ग्लोइंग में चली जाती है। ठीक है, such that when a current pass through the coil, heat is generated, बहुत ज़्यादा heat generate होती है। ठीक है, generally the potential difference applied to the electrical appliance is the same as that of the mains, that is 220 to 230 in India and 110 volt in US and Canada। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि भाई 220 से 230 तो इंडिया में जो है वोल्टेज होता है, मेन सप्लाई होती है, राइट, एंड
110 होती है यूएसए और कनाडा में। तो तुम खुद सोचो, यहाँ की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई डिवाइस बनती है और अगर उसको वहाँ पर ऑपरेट किया जाता है तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जैसे मानो कि तुम लोग घूमने गए हो, लेट्स से आप यूएसए चले गए हो, राइट। अब वहाँ पर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है, पर वहाँ पे तो जो है 110 वोल्ट का रहता है मेन सप्लाई, ऑलराइट। तो आपको क्या करना, लेकर जाना होगा, आपको वोल्टेज चेंजर लेकर जाना होगा। अगर आप वो लेकर जाएंगे तो पहले आप वोल्टेज चेंजर को अप्लाई करेंगे, देन आप अपने चार्जर को अप्लाई करेंगे, फिर उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, तब जाके जो है आपका पूरा काम और सही तरीके से ऐसा होगा ताकि आपका कोई डिवाइस फेल ना हो, ठीक है, फ़ोन ख़राब ना हो, ऐसा हम कह सकते हैं। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कौन सा डिवाइस कहाँ के लिए बना हुआ है, वहीं पर वो यूज़ हो, अगर आप चाहते हैं कि वो जो है यूजेबल बना रहे इन दैट केस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब हमने क्या किया है, हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब देखो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं। कभी कभी क्या होता है, मेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ही कम हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, वोल्टेज ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है, हमारे घर के सामानों को कुछ ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरीके के छोटे छोटे फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो फ्यूज़ होते हैं उन्हें क्या करते हैं, या तो हम हर एक डिवाइस में लगा दें, या फिर क्या करें, हमारा जो मेन सप्लाई है, हमारा जो यू कैन से एंट्री पॉइंट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घर में आती है, वहाँ पर जहाँ पर आपका मीटर लगा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हम फ्यूज़ कैसे यूज़ करेंगे। फ्यूज़ में क्या होता है, देखेंगे, छोटा सा एक वायर होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा और पतला सा एक वायर होता है। ये वायर जो है इसका करंट स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे मानो कि आपके घर में जो करंट यूज़ हो रहा है, लेट्स से 30 एम्पियर यूज़ हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ, 30 एम्पियर यूज़ हो रहा है। आप ये चाहते हैं कि आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको सिर्फ 30 एम्पियर का ही करंट चाहिए। अगर ज़्यादा करंट आया तो आपके डिवाइसेस ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 31 या फिर 32 एम्पियर, मतलब इस तरीके का आप यहाँ पे मटेरियल यूज़ करके छोटा सा वायर जो है लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर इस वायर के अंदर 30 एम्पियर से ज़्यादा हुआ, लेट्स से 31 या 32 एम्पियर हुआ, तो ये टूट जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस अगर आपके घर में 32 एम्पियर का करंट अगर फ्लो होता है तो ये मेल्ट हो जाएगा, और इस केस में आपके घर के जितने भी डिवाइसेस हैं उनका कनेक्शन सर्किट जो है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, वो स्टॉप हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ वो सब के सब बच जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्यूज़ होता है ये एक तरीके से एक सेवर होता है, यू कैन से एक प्रोटेक्टर होता है जो कि सारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरीके से जो फ्यूज़ है ना, ये बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। अब देखो जनरली तो नहीं, हम इसको हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपने डिवाइसेस के अकॉर्डिंग जो है यूज़ करते हैं। देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इजीली फ्यूजेबल वायर, इजीली फ्यूजेबल जो जल्दी से मेल्ट हो जाता है, of short length put into an electric circuit for protection purposes. It is arranged to melt blow at a definite current. तो मतलब एक definite current पे ये इसको इसी तरीके से बनाया जाता है कि करंट पे जितना हम चाहते हैं उतने करंट पे ये फ्यूज हो जाए, यानी कि मेल्ट हो जाए और ब्रेक कर दे सर्किट को, ठीक है। इट इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ये हमेशा लेड एंड टिन का बनता है, 37% लेड और 63% टिन का होता है। देखेंगे इसकी लो रेजिस्टिविटी होती है, बिकॉज वी वांट कि इसके अंदर से करंट जाए, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर से करंट जाए, दैट्स वाई हमने क्या किया है, उसका लो रेजिस्टिविटी रखा है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट रखा है कि जितना हम चाहते हैं उससे थोड़ा सा भी करंट अगर ज़्यादा हुआ तो ये मेल्ट हो जाए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, राइट। और जैसे ही एज सून एज द सेफ लिमिट ऑफ द करंट एक्सीड्स द फ्यूज ब्लोज एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कट ऑफ, जैसे ही जितना हम चाहते हैं करंट हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए उससे हल्का सा भी ज़्यादा होता है, सो इट मेल्ट्स, ठीक है, और उससे क्या होता है, ये ब्रेक कर देता है पूरा सर्किट को, एंड दैट्स वाई हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस हैं, वो सेफ हो जाते हैं। सो दैट इज़ द गुड यूज़ ऑफ द, यू कैन से द हीटिंग इफेक्ट, बिकॉज उसी की वजह से वो मेल्ट होता है, राइट। मेल्टिंग का क्या प्रोसेस है कि अगर जैसे क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी करंट ज़्यादा हुआ तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा मिलने के चक्कर में क्या होगा, वहाँ पर हीट ज़्यादा एनर्जी हीटिंग हो जाएगा, एंड दैट्स वाई हीट से इस वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड इट विल मेल्ट, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस हैपन्स, ऑलराइट। एंड इस तरीके से हम रियली में हीटिंग इफेक्ट का फायदा उठाते हैं, यूज करते हैं, वी कैन से दैट, ऑलराइट, एंड दैट इज ऑल। आपको अब क्या करना है,
आपको अब जो है फटाफट से होमवर्क नोट कर लेना है। एंड व्हाट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे? योर होमवर्क फॉर टुडे इज़, पहले तो ये क्वेश्चन जो है आप देख लो, ये क्वेश्चन आपको करना है और इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, आज के लिए ये होमवर्क है। एंड आपको क्या करना है, 1D, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के डी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे डी चेक पॉइंट्स करने हैं, ऑलराइट, और सारे का सारा आपको यू कैन से एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो दैट इज होमवर्क फॉर यू ऑल, राइट। अब हम लोग जो है देखते हैं कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वही सारा का सारा अप्लाई करना है और आपको 1D वाला सॉल्व करना है सेक्शन, ऑलराइट। फर्स्ट चैप्टर का डी सेक्शन आपको सॉल्व करना है। दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। जितने लोगों को हो सके उनको साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी पढ़ सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। थैंक यू सो मच।